Hi guys, welcome back to the YouTube channel of IMS Uttar Pradesh. So let's start with set number 13 of this particular playlist. First, pause the video, try it on your own, and proceed with the video solution. So this particular set is a DI based set which is based on bar graph data, and this I've taken from previous year's Sunget, and the set says Indian International Medical Center (IIMC) is a large hospital located in Delhi and has five specialized units: cardiology, neurology, oncology, orthopedics, and gynecology. Patient as well as doctors in these five units can be either international or Indian. The following bar graph shows the number of international patients as well as the number of international doctors in the five unit expressed as a percentage of the total number of patient and doctors in the respective unit. The number of patients in the five units cardiology, neurology, oncology, orthopedics, and gynecology expressed as a percentage of the total number of patients in IMC is 10%, 20%, 30%, 24%, and 16%, respectively. Similarly, the number of doctors in these five units expressed as a percentage of the total number of doctors in IIMC is 10%, 20%, 25%, 25%, and 20%, respectively. Each person, whether a patient or a doctor, is associated with only one unit. क्वेश्चन से बात देख लेता हूँ. क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है which of the following unit has the highest ratio of Indian patient to the Indian doctors. क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है if the total number of doctors and the total number of patient in IMC are the minimum possible number, what is the ratio of the total number of patient and to the total number of doctors. क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है A is equal to the maximum number, B is equal to the minimum number, और if A is equal to B तो पूछा हुआ what is the ratio of the total number of patient. And question number 4 again is on if का logic पे if the total number of patient is 10 times the total number of doctors. ठीक है. क्वेश्चन सारे इफ के हैं तो मतलब डेटा है सच कुछ अपने को पूरा यूनिक नहीं मिलेगा, सब रिलेटिव टर्म्स में मिलने वाला है. अब अपने को यहाँ पे डेटा क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है आईएमसी, जहाँ पे दो तरीके के पेशेंट है, इंडियन और इंटरनेशनल. दो तरीके के डॉक्टर्स हैं, इंडियन और डॉक्टर इंटरनेशनल. और ये जो पेशेंट और डॉक्टर है ये पांच अलग अलग डिपार्टमेंट के से बिलोंग करते हैं: कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स एंड गायनोकोलॉजिस्ट. ये जो बार ग्राफ है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ international patient as well as number of international doctors in the five unit expressed as a percentage of the total number of patient and doctors in the respective unit. यानी कि कार्डियोलॉजी में 20% जो है वो है इंटरनेशनल पेशेंट और 5% इंटरनेशनल डॉक्टर्स हैं. ठीक. सिमिलरली यहाँ पे दिया हुआ 10% इंटरनेशनल पेशेंट, 25% इंटरनेशनल डॉक्टर्स. ठीक. The number of patients in the five unit cardiology, neurology, oncology, orthopedics, and gynecologists expressed as a percentage of the total number of patients in IMC is 10%, 20%, 30%, 25%, 4%, and 16% respectively. कह रहा है जो टोटल नंबर ऑफ पेशेंट है उनमें से 10% इज फ्रॉम कार्डियोलॉजी, 20% है न्यूरोलॉजी का, 30% है ऑन्कोलॉजी का, 25% है ऑर्थोपेडिक्स का और 16% है गायनोकोलॉजी का. Similarly, the number of doctors in these five units expressed as a percentage of total number of doctors in IMC is 10%, 20%, 25, 25 and 20% respectively. ठीक है. अब अपने को दो चीजें दी गई है समझना. पहला, टोटल नंबर ऑफ पेशेंट में से जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो दे दिया गया कि उसमें से कार्डियो में 10 है, फिर 20 है, फिर 30 है, फिर 24 है, और उस 10 में से 20% इंटरनेशनल है तो बचा हुआ 80% इंडियन होगा. ठीक. आई होप ये पॉइंट समझ आएगा. तो इसके लिए क्या करा जाए, एक टेबल बना लिया जाए. टेबल कुछ ऐसा. ठीक है. अब मेरे को देखो पहले दिया क्या इन्फॉर्मेशन वो देखता हूँ. मेरे को लिखा हुआ है द नंबर ऑफ पेशेंट इन दी five units of cardiology, neurology, oncology, orthopedics and gynecology expressed as a percentage of a total number of patient in IMC is 10%. ठीक है. लेट्स से मैं ले लेता हूँ कि टोटल पेशेंट है मेरा 100x. ठीक. ऐसा बना लेता हूँ कि जो मेरे पास टोटल जो पेशेंट है वो है 100x. उस 100x में से 10% कहाँ पे है? कार्डियोलॉजी में. यानी कि जो टोटल पेशेंट्स है मेरे पास कार्डियोलॉजी में वो है 10x. ठीक. ऐसे ही 20x, 30x, 24x और 16x. यानी कि अगर मैं बात करूं तो ये पूरा 100 का सम बनी होगा 30, 60, 40. अच्छा. सिमिलरली मैं ले लेता हूं कि लेट्स से जो मेरे पास डॉक्टर्स हैं उसको मान लेता हूं मैं 100y. ठीक है. 100y का मतलब यहाँ पे मेरे को दिया हुआ है 10%, 20%, 25%. तो डॉक्टर्स हो गए 10y, 20y, 25y, 25y एंड 20y.
ठीक, ये भी अपने को यहाँ पे मिल गया। अच्छा, सो नाउ आई हैव पेशेंट का नंबर्स, डॉक्टर्स का पूरा नंबर। अब उसके कॉन्टेक्स्ट में अपने को ये दिया हुआ है कि ये जो डॉक्टर्स हैं, सॉरी ये जो पेशेंट हैं, उनमें से कार्डियोलॉजी के 20% इंटरनेशनल है, यानी कि इसका 20% इंटरनेशनल है, यानी कि 80% इंडियन होना चाहिए ऐसा। 10% इंटरनेशनल है, यानी कि 2x, यानी कि यहाँ पे कितना होना चाहिए था 18x। 5% इंटरनेशनल है, यानी कि 1.5x, यानी कि 28.5x। 15% इंटरनेशनल है, यानी कि 24 और आधा 1.2, तो यानी कि 3.6x। और पीछे कितना रह जाएगा, 24 में से 3.6 माइनस कर लेंगे तो 24 में से 3 21 और 20.4x। ठीक, 16x का 25%, यानी कि 1/4। तो यहां से अपने को ये पता चल गया कि ये मेरा 100x था, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन 2 2 4 5.5, 2 2 4 4 8, 9.5 और 10.1 और 13.1 आ गया। ठीक, यानी कि जो बचा हुआ है वो इंडियन होना चाहिए था, विच इज कितना 8 12 20, 20 और 18 38, और 38 और 20 58, 58.4 58.9, 58.9 और 68 78 और 86 86.9। ठीक, एग्जैक्टली इन दोनों का सम ही 100 बन रहा है ना, इसी का डिस्ट्रीब्यूशन है ये। ठीक, 86.9x और ये 13.1x। ठीक है। अच्छा, सिमिलरली मैं यहाँ देख सकता हूँ ये क्या है 5%, तो यानी कि यहाँ पे कितना आ गया 0.5y, यानी कि 9.5y इधर आ गया। ठीक, 25% यानी कि 1/4, 5y, 15y, 20% यानी कि 1/5, तो 1/5 आ गया 5y अगेन, और यहाँ पे कितना आ गया रिमेनिंग 20y। ठीक, 10% यानी कि 2.5y, 22.5y। ठीक है, 15% यानी कि 3y और 17y, यानी अगर इसको सम कर लेता हूँ तो कितना आ जाएगा 3 5 और 3 3 6 6 5 प्लस 10 16 16y। ठीक, यानी कि जो बचा हुआ 84y है वो यहाँ पे आना चाहिए था, जिसको यहाँ से चेक कर लेता हूँ। 15 20 35 और इन दोनों को अगर ले लेता हूँ तो दिस बिकम्स 23 एंड 9, 23 एंड 9 इज 32, 32 32 और 52 52 और 62 67 67 और 7 74 और 10 84। ठीक, यहाँ पे ये 100y का डिस्ट्रीब्यूशन ये भी हमें मिल गया। ठीक, तो जब भी तुम्हें ऐसा कोई सेट मिले ना, इसको क्या करो एक्स और वाई के फॉर्म पे ले लो और 100x और 100y के फॉर्म पे ले लो, क्योंकि परसेंटेज में लोगे तो यार हो सकता है कि तुम फंस जाओ। ठीक है, सॉल्व करते करते हो सकता है कि तुम्हारे डेसिमल वाले इतने नंबर लेके भी ट्राई मार सकते हो 100 और 100 लेके। ठीक है, बट ज़्यादा बेटर एडवाइस है कि 100x और 100y ले लो, तो वहाँ पे वो दिखना शुरू हो जाता है। ठीक, अच्छा, अब क्या है ना कि तुम्हें रेशियो जो पूछेगा वो x और y का तो वो निकलता जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए which of the following unit has the highest ratio of Indian patient to Indian doctor? Indian patient to Indian doctors, यानी कि यहाँ पे 8x अपॉन 9.5y करना है, तो x और y यहाँ पे कॉमन हो गया तो रेशियो मिल जाएगा, यानी कि दिस इज लेस देन 1। दिस इज न्यूरोलॉजी का मोर देन 1 18x, है ना, दिख रहा है ना। मेरे को क्या करना है 8x और 9.5y का चेक करना है, तो यानी कि 8x अपॉन 9.5y। अच्छा, न्यूरोलॉजी का 18x और 15y, तो ये हाईएस्ट पूछा हुआ है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट रेशियो, तो फिलहाल अभी ये ज्यादा बड़ा है। ठीक है, ऑन्कोलॉजी का 28.5 और 20, ये इससे ज्यादा बड़ा आ गया, बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है ये तो यार तुम्हारा 6/5 है विच इज 1.2। ठीक है, ये तुम्हारा है 1.4 से ज्यादा, साफ दिख रहा है ना, तो बहुत ज्यादा एग्जैक्ट वैल्यू निकालने पे नहीं लगता है। दिस इज लेस देन 1, तो आंसर क्या होना चाहिए था, ऑन्कोलॉजी होना चाहिए था। ठीक है, आई होप ये पॉइंट समझ आएगा। दिस वाज लेस देन 1, दिस वाज 1.2 के आसपास, साफ दिख रहा है 6/5 है ये।
और ये दिख रहा है 1.4 से ज्यादा है, कितना ज्यादा उससे निकालने का मतलब नहीं, 1.4 से ज्यादा ना, इससे ज्यादा ये पता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। इफ द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ डॉक्टर्स एंड द टोटल नंबर ऑफ पेशेंट इन आईएमसी आर मिनिमम पॉसिबल नंबर, टोटल नंबर ऑफ डॉक्टर्स, ठीक, ये जो मैंने टोटल लिया हुआ है ये नंबर और ये नंबर, total number of doctors and the total number of IMC are minimum possible number, then what is the total number of patient to the total number of doctors? Patient और डॉक्टर का रेशियो निकाल। ठीक, कैसे करा था जरा सोचते हैं। हमने जब इसको 100 लिया तो प्रॉब्लम क्या आ रही है, मान लो ये 100 ही होता, x की वैल्यू 1 होती और y की भी वैल्यू 1 ही होती, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू। ठीक है, जब मैं 100 और 100 ले रहा हूं तो यार ये ना 28.5 बन रहा है, ये 30.4 बन रहा है। क्या पॉसिबल है, सोचो थोड़ा। क्या पेशेंट कोई ऐसा हो सकता है कि यार 28.5 पेशेंट है, ऐसा तो होगा नहीं। व्हेनेवर यू हैव अ पेशेंट वो तो इंटीजर होगा ना, वो या तो 28 होगा या तो 29 होगा। पॉइंट समझ रहे हो। सिमिलरली देखो यहाँ पे 20.4 है, 20.4 नहीं होगा ना, या तो 20 होगा या तो 21 होगा। तो मेरे को ये जो इंटीजर बनाने पड़ेंगे इनको। ठीक, इंटीजर बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो इंटीजर बन जाएगा। तो मान लेता हूँ कि लेट्स से 200 की वैल्यू एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ। तो मेरा देखो ये 2 इंटीजर में बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। अब लेकिन प्रॉब्लम ये कर रहा है, ये क्या 7.2 बैठा हुआ है और ये बन गया क्या 20.8। इसको क्या कर सकता हूँ, 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यानी कि अगर मैं 1000 का नंबर लेता हूँ तो देखना सब इजी हो जाएगा। तो ये बन जाएगा मेरा कितना 2080। ठीक, ये भी 20 और 180 बन जाएगा, ये 15 और 285 बन जाएगा, 36 और 204 बन जाएगा, 40 और 20, यानी कि ये सब इंटीजर बन जाएगा। सो फॉर पेशेंट आई कैन कंसिडर 1000 का नंबर। ठीक है, अच्छा सिमिलरली डॉक्टर्स पे ट्राई करता हूँ। डॉक्टर्स पे क्या देखो यही प्रॉब्लम कर रहा है 0.5, बाकी सब जगह पे नहीं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। यानी कि 200 होना चाहिए था फॉर डॉक्टर्स, सॉरी 1000 वाज फॉर पेशेंट एंड 200 वाज फॉर डॉक्टर। ये मेरे मिनिमम पॉसिबल नंबर होना चाहिए था। फिर से लॉजिक बताता हूँ, मैंने क्या करा, ये जो डेसिमल वाले चीजें हैं इसको इंटीजर बनाने पे फोकस करा, और वो इंटीजर कब बनेंगे वो वैल्यू पे दिमाग लगाया। ठीक है, तो मेरा ये जो मिनिमम वैल्यू है ये आ रही है। इसके अलावा इससे नीचे कुछ भी वैल्यू लेता हूं तो ये जो वैल्यूज है मेरी, जो सब एलिमेंट है वो नॉन इंटीजर आने शुरू हो जाएंगे। अब मेरे को पूछा व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पेशेंट टू द टोटल नंबर ऑफ डॉक्टर्स, पेशेंट और डॉक्टर्स का रेशियो कितना है, 5:1 हैज टू बी द राइट आंसर। ये यहाँ पे अपने को साफ साफ दिख रहा है। ठीक, दोनों ही ये कैटेगरी क्वेश्चन है ना, एकदम आसानी से निकाले जा सकते थे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सपोज द ए इज इक्वल टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडियन डॉक्टर्स अमंग द 5 फिश यूनिट। ए की वैल्यू जो है वो है मिनिमम नंबर ऑफ इंडियन डॉक्टर्स। मिनिमम नंबर ऑफ इंडियन डॉक्टर्स कहां पे होगी, इंडियन डॉक्टर्स यहां पे होनी चाहिए थी 8x पे, सॉरी मैक्सिमम बोला है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडियन डॉक्टर्स कहां पे आएगी, यहाँ पे आएगी 28.5x पे। तो यानी कि ये ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, 28.5x। ठीक, सही है ना। अच्छा, बी हैपेंस टू बी द मिनिमम नंबर ऑफ इंडियन पेशेंट। ओके सॉरी उल्टा ले लिया ना मैंने। अब यार इन क्वेश्चंस में ना ये ध्यान देना। ठीक है, फिर से बढ़ते हैं। मैं क्या बोला था, ए इज इक्वल टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडियन डॉक्टर्स। इंडियन डॉक्टर्स में सबसे ज्यादा नंबर ही आएगा 22.5, तो यानी कि ये आना चाहिए था 22.55। ठीक, अच्छा, एंड बी इज हैपेंस टू बी द मिनिमम नंबर ऑफ इंडियन पेशेंट। बी हैपन टू बी मिनिमम नंबर ऑफ इंडियन पेशेंट, तो वो 8x होना चाहिए था। ठीक, इफ ए इज इक्वल टू बी, ये दोनों अगर बराबर है, यानी कि अपने को कह रहा है कि 22.5y इज इक्वल टू 8x, ऐसा कहना चाह रहा है। ठीक है, देन क्या पूछा, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पेशेंट टू द टोटल नंबर ऑफ डॉक्टर्स। टोटल नंबर ऑफ पेशेंट और टोटल नंबर ऑफ डॉक्टर्स का रेशियो क्या होने वाला है, एक्स अपॉन वाई का रेशियो पूछा हुआ है, ऐसा ही है ना। तो मतलब टोटल नंबर ऑफ पेशेंट टू द टोटल नंबर ऑफ डॉक्टर्स, यानी कि x:y का रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, x अपॉन वाई इज इक्वल टू 22.5 अपॉन 8। ठीक, इसको अगर मेरे को थोड़ा सा रैशनलाइज करना है तो कैसे करेंगे, थोड़ा सोचो। इसको डबल कर लूं तो हो जाएगा, यानी कि x अपॉन वाई इज इक्वल टू 45 अपॉन 16 कर लूं, काम हो जाएगा। और एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे दिख भी वही रहा। ठीक, अब यार ये जो दोनों क्वेश्चन है ना, इसको जरूर ट्राई करना और जरूर इसका सॉल्यूशन देख के एक बार समझ लेना, बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चन कैट पूछता है और ना ये बहुत टेम्पटिंग लगता है कि यार हो जाए, और एक्चुअल में ये सेट करने वाला होता है।
ठीक है, बट क्योंकि DI है इसलिए भाग जाते हैं, क्योंकि ऐसा सेट कभी ट्राई नहीं किया होता तो दिमाग नहीं लगता। तो प्लीज़ ऐसे सेट को 1-2 बार ट्राई कर लो। ठीक, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द टोटल नंबर ऑफ पेशेंट इज़ 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ डॉक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ पेशेंट और टोटल नंबर ऑफ डॉक्टर को 10 टाइम्स ले लिया। ठीक है, तो मान लेता हूँ कि पेशेंट है मेरा 1000 और डॉक्टर को ले लेता हूँ 100, ऐसा? ठीक। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इंटरनेशनल पेशेंट टू द टोटल नंबर ऑफ इंटरनेशनल डॉक्टर्स? इंटरनेशनल पेशेंट कितने हैं? 86.9, सॉरी 31 13.1। इस ये 100 पे ये था तो कितने हो जाएँगे? 131 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये आ गया तुम्हारा 13.1 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 1000 पे ही आ जाएगा। अच्छा, इसको किससे निकालना है? इंटरनेशनल डॉक्टर। इंटरनेशनल डॉक्टर क्या मिला? 16Y, तो ये तो 16 ही हो जाएगा, यानी कि कितना होना चाहिए था? 131:16, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हैज़ टू बी द राइट आंसर। ठीक है। ओवरऑल अगर आप फ़ैमिलियर हो तो ये ईज़ी से मॉडरेट सेट है। दिस इज़ नॉट अ डिफिकल्ट सेट। अगर आपने ऐसा कुछ पहले ट्राई कर रखा है तो आपके लिए बहुत ही आसान सेट है। ठीक है? चलो कीप प्रैक्टिसिंग।